آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک نہایت دلچسپ اور سبق آموز کہانی جس کا عنوان ہے گھمنڈی راجا اور تین بھائی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت، دولت اور علم پر غرور کرنا انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر سچائی، ایمان اور خدا پر بھروسہ رکھنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کہانی میں آپ جانیں گے کہ کس طرح تین ہیں نیک بھائیوں نے ایک ظالم راجا کو بدلنے پر مجبور کر دیا۔ تو کہانی کو آخر تک ضرور سنیں اور اس سے ملنے والے سبق کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ ایک وقت کی بات ہے کہ ایک دور دراز ریاست میں ایک گھمنڈی اور ظالم راجا حکومت کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے بڑا اور طاقتور سمجھتا تھا اور اپنی رعایا کے ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے بڑا اور طاقتور سمجھتا تھا اور اپنی رعایا کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا۔ اس کی خواہش ہوتی تھی کہ سب لوگ اسے جھک کر سلام کریں اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس کا تکبر اور غرور حد سے بڑھ چکا تھا اور اس کی رعایا ہمیشہ اس کی زیادتیوں سے تنگ آنچ کی تھی۔ اس ریاست میں تین بھائی رہتے تھے جن کا نام احمد، علی اور عمران تھا۔ وہ محنتی، ایماندار اور خدا پر بھروسہ کرنے والے لوگ تھے۔ تینوں بھائی ہمیشہ سچائی، انصاف اور خدا کے احکامات پر چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے راجا کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، مگر وہ خاموش رہتے کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ راجا کا چیلنج۔ ایک دن راجا نے ایک اعلان کیا کہ جو بھی شخص میرے 3 سوالات کا صحیح جواب دے گا اسے آدھی ریاست کا مالک بنا دوں گا، اور جو جواب نہ دے پایا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اس نے یہ چیلنج اس یقین کے ساتھ دیا کہ کوئی ہوگا بھی اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا اور وہ مزید طاقتور نظر آئے گا۔ تینوں بھائیوں نے یہ چیلنج قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا مقصد راجا کی طاقت کو چیلنج کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ لوگوں کو ظلم سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ خدا پر بھروسہ کرنے سے ہی وہ اس مشکل میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ راجا کے سوالات جب تینوں بھائی راجا کے سامنے پیش ہوئے تو راجا نے پہلا سوال پوچھا۔ سوال 1، دنیا میں سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ سب لوگ خاموش تھے، لیکن احمد نے آگے بڑھ کر کہا، سب سے بڑی طاقت خدا کی ہے، کیونکہ وہی خالق ہے اور وہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ راجا نے دوسرا سوال پوچھا۔ سوال 2، سب سے بڑا علم کس کے پاس ہے؟ علی نے جواب دیا، سب سے بڑا علم خدا کے پاس ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ انسان کا علم محدود ہے، مگر خدا کا علم لامحدود ہے۔ راجا نے تیسرا اور آخری سوال پوچھا۔ سوال 3، انسان کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ اس بار عمران نے جواب دیا، سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ اگر انسان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے تو وہ ایمان ہے۔ ساری دولت ہو لیکن ایمان نہ ہو تو وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایمان انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے اور دنیا کی فانی دولت سے افضل ہے۔ راجا کی شکست۔ راجا حیران رہ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی بھی اس کے سوالات کا جواب نہیں دے پائے گا، لیکن تینوں بھائیوں نے نہ صرف جواب دیا بلکہ اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم دنیاوی طاقت، علم اور دولت سب کچھ عارضی ہیں۔ اس کے دل میں ایک تبدیلی آئی اور اسے اپنے تکبر اور غرور کا احساس ہوا۔ راجا نے تینوں بھائیوں کی سچائی اور ایمان ہوا کی طاقت کو قبول کیا اور کہا، تم لوگوں نے مجھے سکھایا ہے کہ حقیقی طاقت، علم اور دولت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں اپنی رعایا کے ساتھ جو ظلم کرتا رہا ہوں اس پر مجھے پچھتاوا ہے۔ آج سے میں اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف اور محبت سے پیش آؤں گا۔ سبق۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی دولت، طاقت یا علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقی کامیابی اور سکون صرف ایمان، انصاف اور سچائی کے راستے پر چلنے میں ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی اہم سبق آموز کہانی جس کا عنوان ہے گھمنڈی راجا اور لکڑہارا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دولت، طاقت اور اختیار ہیں ہماری زندگی کی اہمیت ہے۔ زندگی کے سب سے بڑے خزانے نہیں ہوتے، بلکہ حقیقی عزت اور سکون عاجزی اور نیکی میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک مغرور راجا کو اپنی طاقت پر غرور ہوتا ہے، لیکن قدرت اسے سکھاتی ہے کہ دنیا میں اصل طاقت دولت یا اقتدار نہیں، بلکہ دل کی سادگی اور دماغ کی دانائی ہے۔
आइए शुरू करते हैं ये सबक आमोज दास्तान। बहुत वक्त पहले की बात है। एक दौर दराज के जंगल के किनारे एक अजीम सल्तनत कायम थी। इस सल्तनत का राजा बहुत ही अमीर, ताकतूर और बेहद गुरूर वाला था। इसकी शान और शौकत, दौलत और सिपाहियों का शुमार नहीं किया जा सकता था। राजा हमेशा अपनी ताकत पर फख्र करता था और खुद को सबसे ज्यादा अक्लमंद और ताकतूर इंसान समझता था। इस सल्तनत के गांव में एक सादा दिल और मेहनती लकड़हारा रहता था, जो रोजाना जंगल से लकड़ियां काटकर अपनी रोजी कमाता था। वो बहुत खुशहाल तो नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई पर कनात करता था और सुकून से जिंदगी गुजारता था। उसका दिल साफ और नीयत अच्छी थी। एक दिन राजा अपने महल के सहन में बैठा हुआ था और अपने वजीरों से कह रहा था, क्या तुम लोग दुनिया में कोई ऐसा शख्स जानते हो जो मुझसे ज्यादा ताकतूर हो? मेरे पास दौलत, सिपाही और जमीनें हैं। मैं जो चाहता हूं वो हासिल कर लेता हूं। वजीरों में से एक वजीर ने कहा, हुजूर, आपकी ताकत बेशक बेमिसाल है, लेकिन हकीकी ताकत दिल की आजिजी और दिमाग की हिकमत में होती है। राजा को ये बात नागवार गुजरी और उसने तंजिया लहजे में कहा, आजिजी? ये कमजोर लोगों की बातें हैं। मेरी ताकत दौलत और अख्तियार में है और यही असल ताकत है। कुछ दिन बाद राजा ने जंगल में शिकार का इरादा किया। वो अपने सिपाहियों और वजीरों के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल के बीच में पहुंचकर राजा हुआ में उड़ता हुआ शिकार का शौक बढ़ा। को एक आदमी नजर आया जो दरख्त काट रहा था। वो लकड़हारा था जो अपनी रोजमर्रा की मेहनत में मसरूफ था। राजा ने लकड़हारे को हकारत से देखा और कहा, ए गरीब इंसान, तुम सारा दिन मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हें क्या मिलता है? गुर्बत और फाका। तुम्हारी जिंदगी में क्या मजा है? लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, हुजूर, आप ठीक कहते हैं। मेरी जिंदगी में ज्यादा दौलत नहीं, लेकिन मैं अपनी मेहनत से सुकून पाता हूं और अपनी रोजी कमाकर मुतमईन हूं। मेरे पास गुरूर करने के लिए कुछ नहीं, लेकिन मेरे दिल में सुकून और आजिजी है। राजा ने यह सुनकर कहकाहा लगाया और कहा, तुम जैसे लोग हमेशा गुर्बत में ही रहते हैं। तुम्हें अपनी किस्मत पर फख्र करने का कोई हक नहीं। लकड़हारे ने तहम्मुल से कहा, हुजूर, दौलत हमेशा साथ नहीं रहती, लेकिन नेकी और आजिजी इंसान को हमेशा इज्जत देती हैं। गुरूर कभी अच्छा अंजाम नहीं देता। राजा ने लकड़हारे की बातों को नजरअंदाज किया और शिकार करने चल पड़ा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद राजा को एक खतरनाक बीमारी लाहिक हो गई। उसके महल के तमाम बड़े तबीब और हकीम इस बीमारी का इलाज करने में नाकाम हो गए। राजा की हालत दिन बदन बिगड़ती जा रही थी। महल के लोग परेशान थे और राजा का गुरूर अब टूटने लगा था। एक दिन महल में खबर फैली कि एक लकड़हारा है जो जंगल की जड़ी बूटियों का इल्म रखता है और इस बीमारी का इलाज कर सकता है। जब ये बात राजा तक पहुंची तो उसने फौरन उस लकड़हारे को महल बुलाया। लकड़हारा वही सादा दिल इंसान था जिससे राजा ने चंद दिन पहले हकारत से बात की थी। वो महल आया और उसने राजा को एक खास जड़ी बूटी दी, जिससे राजा की तबीयत जल्दी ठीक हो गई। राजा अब शर्मंदा था और उसे एहसास हुआ कि हकीकी इज्जत और ताकत दौलत में नहीं, बल्कि आजिजी, इल्म और नेकी में है। उसने लकड़हारे से मुआफी मांगी और कहा, तुमने मुझे आज एक कीमती सबक दिया है। दौलत और ताकत से ज्यादा कीमती आजिजी और नेकी है। लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, हुजूर, दुनिया में सब कुछ फानी है, लेकिन नेकी हमेशा बाकी रहती है। गुरूर इंसान को बर्बादी के रास्ते पर ले जाता है। इस दिन के बाद राजा ने अपने गुरूर को छोड़ दिया और आजिजी से हुकूमत करने लगा। वो अब रआया की खिदमत को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझने लगा और उसकी सल्तनत में अमन और सुकून का दौर दौरा हो गया। नतीजा, गुरूर हमेशा इंसान को अंधा कर देता है और उसके दिल को सख्त कर देता है, लेकिन आजिजी और नेकी इंसान को बुलंद करती है और इज्जत अता करती है। सच्ची ताकत दौलत या अख्तियार में नहीं, बल्कि इंसानियत, इल्म और आजिजी में होती है। एक दौर दराज के देश में एक नहायत हुसीन और दौलतमंद राजकुमारी रहती थी जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब को अपनी खूबसूरती और शाही हैसियत पर बहुत गुरूर था। वो अपने महल है में बैठकर रोजाना लोगों की तहकीर किया करती और उन्हें कमतर समझती। खास तौर पर वो गरीब लोगों से बहुत नफरत करती थी और उनसे बात करना भी पसंद नहीं करती थी।
एक दिन ज़ैनब के जूते फट गए और वो चाहती थी कि कोई उन्हें जल्दी से ठीक कर दे ताकि वो अपने दरबार में शिरकत कर सके। इसके महल के दरवाजे पर एक मौची बैठा करता था जिसका नाम आसिम था। आसिम नहायत मेहनती और दयानतदार इंसान था, लेकिन वो बहुत गरीब था। राजकुमारी ज़ैनब ने आसिम को बुलाया और गुस्से से कहा, मेरे जूते फौरन ठीक करो, लेकिन याद रखो ये काम जल्दी होना चाहिए वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। आसिम ने मुस्कुराते हुए जूते ठीक करना शुरू किए, लेकिन राजकुमारी का गुरूर और तकब्बुर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने आसिम से कहा, तुम जैसे गरीब लोग हमेशा हमारे जैसे शाही लोगों के सामने झुके रहते हो। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम तो एक मामूली मूची हो। आसिम ने नरमी से जवाब दिया, मोहतरमा, अल्लाह ने सबको एक जैसा बनाया है। दौलत और शान और शौकत अल्लाह की दीन है, लेकिन असल अजमत इंसान के किरदार में है। राजकुमारी ने तंज है करते हुए कहा, तुम जैसे लोग हमें सबक सिखाने चले हो। देखना, मेरी दौलत और खूबसूरती हमेशा मेरे साथ रहेंगी और तुम हमेशा एक मूची ही रहोगे। कुछ दिनों बाद राजकुमारी ज़ैनब एक अजीम अलशान तकरीब में शिरकत करने गई, जहां बहुत से बादशाह और अमीर लोग मौजूद थे। इस तकरीब में एक नहायत खूबसूरत शहजादा भी आया, जिसने शहजादा राजकुमारी की खूबसूरती से मुतासिर हुआ और उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन एक अजीब बात हुई। जिस दिन शादी तय हुई, राजकुमारी के चेहरे पर उचाईक हुआ और उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की एक बीमारी नमूदार हो गई और उसकी खूबसूरती खत्म होने लगी। वो बहुत परेशान हुई और हर तरह के हकीम और तबीब बुलाए, लेकिन कोई भी इस बीमारी का इलाज न कर सका। राजकुमारी का गुरूर चुकना चूर हो चुका था। वो खुद को आईने में देखकर रोने लगी और उसे एहसास हुआ कि उसकी खूबसूरती और दौलत आरिजी थी। एक दिन वो महल से बाहर निकली और आसिम मोची के पास गई, जो हमेशा की तरह अपने काम में मसरूफ था। राजकुमारी ने आंसू भरी आंखों से कहा, आसिम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कमतर समझा और तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं की। अब मैं समझ गई हूं कि असल अजमत दिल की पाकीज़गी और किरदार में है, न कि दौलत और खूबसूरती में। आसिम ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहतरमा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि गुरूर और तकब्बुर इंसान को कभी फायदा नहीं देते। अल्लाह हमें आजिज़ी सिखाता है और यह सब उसकी मर्जी से होता है। सबक, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि गुरूर और तकब्बुर इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि आजिज़ी और सादगी इंसान को असल अजमत अता करती हैं। दौलत, खूबसूरती और ताकत आरिज़ी हैं, लेकिन अच्छे अखलाक और आजिज़ी हमेशा याद रखी जाती हैं। नतीजा, कहानी का पैगाम यह है कि कभी भी किसी पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताली को आजिज़ी पसंद है और गुरूर का इंजाम हमेशा बरा होता है।